Good morning, dear students. Today we are going to do another chapter from our grammar book. The name of the chapter is Adjectival Clauses. As we have been doing the chapter of clauses, today we are going to discuss about what are adjectival clauses. As you know that a clause is a group of sentence that has a subject and a predicate of its own. It has a finite verb. Now, what do you understand by adjective? First of all, let us discuss about what is an adjective. An adjective is a describing word. It is used to modify a noun or a pronoun. Like if we say, she is a very beautiful girl. Here, the word which is describing the girl is beautiful. This word is used here as an adjective. Now, let us take sentence number 2. She is a girl. वो एक लड़की है. Who is very beautiful, जो कि बहुत सुंदर है. So here, what is the main verb? Main verb is she is a girl. This part it is telling us about the girl used in this sentence, the noun used in this sentence. ये इसके बारे में बता रहा है कि लड़की है. कौन सी लड़की? She is a girl who is very beautiful, जो कि बहुत सुंदर है. So this group of word is an adjectival clause. Because it is answering what kind. When you get the answer of what kind about the noun or the pronoun, when you get what is the thing being discussed is described, then this group of word will be called an adjectival clause. An adjectival clause is also known as relative clause because it is introduced with the words like who, whose, whom, that, etc. Now let us read more about them. The adjective clause acts an adjective in a sentence. It qualifies the noun or the pronoun that goes before it. It is usually introduced by a relative pronoun like who, whose, which, that, etc. Now let us talk about more sentences. How to identify the adjectival clause in a sentence. This is the book which he has bought. ये एक book है. This is our main clause. कौन सी book है? Which he has bought. जो उसने खरीदी है. I met a friend. मैं एक दोस्त से मिला. Whose father is a pilot. कौन सा दोस्त? जिसके पिताजी एक पायलट है. This is the house. ये एक घर है. What is special about this house? That where she lives. इस घर में वो रहती है. I do not know the time. मुझे समय नहीं पता. कौन सा समय नहीं पता? When he will come. Like this you can identify an adjectival clause in a sentence. Here are few more examples. The boy whom I met yesterday lent me a book. Let us find out the main clause from this sentence first. The boy whom I met yesterday, जिस लड़के से मैं कल मिला, lent me a book, उसने मुझे एक बुक उधार दी. तो the boy lent me a book, ये हमारी मेन क्लोज है. लड़के ने मुझे एक बुक उधार दी. कौन सा लड़का? whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला. तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि कौन सा नाउन और प्रोनाउन, वो हमारे नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसे डिस्क्राइब कर रहा है. लेट अस टेक नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज द पेन विच आई ऑलवेज यूज. ये एक पेन है. क्या खास है इस पेन के बारे में? विच आई ऑलवेज यूज, जिसे मैं हमेशा यूज करता हूं. हियर आर द शूज विच कॉस्ट ₹8,000. ये जूते हैं. क्या स्पेशल इन जूते के बारे में? विच कॉस्ट ₹8,000, कि इनका कॉस्ट 8,000 रुपीज है. दिस इज द बॉय हु हैज बीन सिलेक्टेड. ये एक लड़का है. नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट द बॉय हु हैज बीन सिलेक्टेड? Now the subordinated clause which is
An adjectival clause is separated from the main clause with the relative pronoun. एक relative pronoun यूज होता है who, which, whom, etc. ताकि मेन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज से अलग हो जाए। इस तरीके से आप अपनी एडजेक्टिवल क्लोज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। शी वांट्स टू चूज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक दैट इज लाइकली टू सूट हर वॉइस। वो ऐसा फॉर्म ऑफ म्यूजिक चूज करना चाहती है दैट इज लाइकली टू सूट हर वॉइस, जो उसकी आवाज को सूट करे। अ फिल्म विच हैज नो सीन्स ऑफ वायलेंस इज डिफिकल्ट टू कम बाय। ऐसी मूवी आना जिसमें वायलेंस के सीन ना हो बहुत मुश्किल है। द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन IT कंपनीज हैव टू समटाइम्स वर्क इन इवनिंग शिफ्ट। वो लोग जो IT कंपनीज में काम करते हैं उन्हें इवनिंग शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विच इज गोइंग टू हैव मोर देन 500 फ्लैट्स will be completed by the end of the year. यहाँ this part, the highlighted portion which is written in red here, that is the adjectival clause. Now look at next sentence. The boys whom I met in the metro train yesterday were my classmates. Look at next sentence. She has seen every film that she talked about. Now why we are discussing all these sentences? Because we are going to discuss about the types of adjectival clauses now. The adjectival clauses can be defined into two parts, two types: non-defining adjectival clauses and defining adjectival clauses. Now what is the difference? What is a defining adjectival clause and what is a non-defining? तो एक defining adjectival clause cannot be omitted. इसे डिफाइनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में से ओमिट नहीं की जा सकती है, निकाली नहीं जा सकती है। अगर हमने ये सेंटेंस में से निकाल दिया तो सेंटेंस विल नॉट बी वर्थ। तो सेंटेंस को समझना, उसका मीनिंग कन्वे होना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हमने सेंटेंस नंबर 1 किया, शी वॉन्ट्स टू चूज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक। वो म्यूजिक का ऐसा फॉर्म चुनना चाहती थी दैट इज लाइकली टू सूट हर वॉइस। अगर हम ये पार्ट यहां से निकाल देते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड लुक एट सेंटेंस नंबर 4। दिस इज द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो इस साल के अंत में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। अब क्या अननेसेसरी है? विच इज गोइंग टू हैव मोर देन 500 फ्लैट्स। इसको अगर हम सेंटेंस में नहीं भी ऐड करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस जो है क्वालिफाई होता है। तो ये एक नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज है। नाउ लेट अस गो थ्रू दी डिफिनेशन। नाउ नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोजेस क्या होते हैं? दे सिंपली एड मोर इंफॉर्मेशन एंड कैन बी लेफ्ट आउट। ये सिर्फ हमें नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड विदाउट चेंजिंग द बेसिक मीनिंग। अगर हम उसे इसमें से निकाल देते हैं तो ये सेंटेंस का बेसिक मीनिंग चेंज नहीं करेगा। और डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग वो पार्ट है अगर उसे हमने सेंटेंस में से निकाल दिया तो उसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई? वी यूज अ कोमा टू सेपरेट द क्लोज इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज। इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बाकी के पार्ट ऑफ सेंटेंस से अलग किया जाता है। हियर द बॉयज whom I met in the metro train yesterday, जिनसे मैं कल मिला। देखिए यहाँ बॉयज के बाद भी कोमा है एंड whom I met in the metro train yesterday, इसके बाद भी एक कोमा पुट किया गया है। The boys were my classmates, वो लड़के मेरे क्लासमेट्स हैं। तो अगर हम ये पार्ट इसमें यूज नहीं भी करते हैं तो भी सेंटेंस का बेसिक मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है। अगर हम देख रहे हैं क्लियरली, इसको कोमा से सेपरेट किया गया है और ये एडजेक्टिवल क्लोज भी कोमा से सेपरेट की गई है। ऑन दी अदर हैंड शी हैड सीन एवरी फिल्म, उसने हर फिल्म देखी। दैट शी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में उसने बात की।
यानी जिन जिन मूवीज के बारे में उसने बात की है वो मूवीज देख चुकी है। अगर हम ये पार्ट इसमें से निकाल देते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट इज वाई दिस इज अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज एंड दिस वन इज अ नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज। अब आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे हम एडजेक्टिवल क्लोज में वो नाउन या प्रोनाउन फाइंड आउट करेंगे जिसको कि डिस्क्राइब किया गया हो। जैसे सेकंड सेंटेंस यहाँ है, जवाहरलाल नेहरू who died in 1964 was the first prime minister of India। अगर हम इसमें ये पार्ट who died in 1964 निकाल दें तो हमारा सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट सेंस देता है कि जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India। ये पार्ट who died in 1964 इसमें से रिमूव किया जा सकता है। अगर ये क्लोज रिमूव किया जा सकता है तो ये एक नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द एडजेक्टिवल क्लोज और दिस सेंटेंस, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दिस इज द मैन हु स्टोल माई वॉलेट। ये वो आदमी है जिसने मेरा वॉलेट चोरी किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई कोमा नहीं है। अगर हम ये पार्ट इसमें से निकाल दें कि हु स्टोल माई वॉलेट, दिस इज द मैन, तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है। तो दिस इज द मैन हु स्टोल माई वॉलेट, ये वो आदमी है जिसने मेरा वॉलेट चोरी किया। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने वॉलेट चोरी किया। तो लाइक दिस इन अ सेंटेंस यू कैन आइडेंटिफाई विच word, which noun or the pronoun is being described in the adjectival clauses and how to identify an adjectival clause. I hope children the chapter is going to be useful for you.